Johar ge. Rusika team Pashtakuna Inge Lakshmi Mandi. Good evening to each one of you. Hope all are doing great. So, आज मैं आपको एक ऐसा शख्स से मिलवाना चाहती हूँ जो बहुत ही खूबसूरत और talented भी है. She won many titles and she got many awards too. जैसे कि she won Miss Impress Universe 2019 and she represented India at Impress Universe International Beauty Pageant, and she won. Uh, she was uh, she was the first runners-up of Odisha Supermodel, and she won Sajja Bajja Rajya that was organized by FM 93.5 and Lalchand Jewelers. She also worked ramps for Blenders Pride, Toyota Paris, designer Kumar, and Santur, Pantaloons, and so on. She also trains models, and she is an official ramp walk trainer and at Odisha Fashion Villa. So I'm a bit confused what to say about her because she has excelled in lots of works, and I myself like मेरे दिमाग में ये घूम रहा है कि मैं क्या पूछूं नहीं पूछूं. तो उनका नाम मैं बता देती हूँ आपको. मिस कुमुदिनी पूर्ते. एंड अभी वो मेरे साथ एक लाइव के द्वारा इंटरेक्ट करेगी. तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारे सवाल है कि मैं क्या पूछूंगी नहीं पूछूंगी. तो मेरे साथ आप भी आपके क्वेश्चंस उनको पूछ सकते हैं. So without any further delay, I'll be welcoming her to my live. So yeah. Hello, ma'am. Hi, Lakshmi. Hi, ma'am. Good evening. How are you, ma'am? Good evening. I'm good. How are you? Yeah, I'm good too, ma'am. How are you doing? I'm doing absolutely great with the God's grace. ओके मैम. सो मैम, एज यू हैव हर्ड, मैंने बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपका क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से एंड करूँ. तो आप ही बता दीजिए. Okay, hi everyone. I'm Kumudini Purti. I started modeling since 2014 and I am a master's in English from Utkal University, 2017 pass out. And apart from that, I am a single daughter and I have a younger brother. My parents are Jeevan Purti and Jashoda Purti, and we all are from Bhubaneswar. But our village is from Rairanpur and so on. There's a lot of things if you would want me to tell you. Well, let's not waste the time. I'm really waiting for the questions. आर यू एक्साइटेड? बिकॉज मेरा एक्साइटमेंट का लेवल तो अभी बहुत हाई लेवल में है. Me too. या. सो मैम, अब तक हाउ मेनी टाइटल्स डिड यू विन ऑल ओवर टोटल? Well, नेशनल टाइटल तो मेरा एक है और उसके बाद जो बाकी सारी ओके. टाइटल्स है दोज आर रीजनल. लाइक आई स्टार्टेड सिंस 2014. सो सिंस देन जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे ओके. रीजनली I used to participate so that it improves my modeling career. Okay. So, ma'am, first of all, what do you think about Baha magazine? This is not the first time I'm listening about Baha magazine. Baha magazine के बारे में मैं शायद आज से 2 साल पहले ही मैंने देख लिया था फेसबुक पे through my मैम, co-models. मैम आपकी आवाज, एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है. Okay, am I audible now? Okay, hold on. No, some network issues, I guess. Hi, ma'am. Okay. Sorry, there is some technical issues, I guess. Yeah. Okay. Hello, ma'am. So sorry, ma'am, there was Hi. some technical issues, I guess. Okay, that's okay. So am I audible now?
Yeah, very clearly. Yeah. So, what I was asking was like, what do you think about Baha magazine? बाहा मैगजीन के बारे में मैंने आज से 2 साल पहले मैंने जाना था और मुझे बात काफी अच्छा लगा था. कॉन्सेप्ट इज सो गुड कि हाँ, दिस इज द फर्स्ट आई थिंक जो प्रॉपरली प्लेस किया गया फॉर ऑल द ट्राइबल गर्ल्स to choose their path in career, especially in modeling. And I'm really happy for that. Yeah. Okay. So, ma'am, according to you, what do you think about tribal beauty? Beauty is anything you see. And you don't have to add tribal beauty. Beauty is everywhere. And जहाँ तक tribals की सवाल आती है, tribals का usually लोगों को पूछेंगे तो tribals का बारे में लोग बोलेंगे कि हाँ, the ones that are uneducated, untouchables, जंगल्स में रहते हैं and all. Usually लोग यही सोचते हैं. But when you see a beauty in anything, beauty is something कि you just cannot describe ये वो. अभी मुझे एक टूटा हुआ पेड़ में भी मुझे ब्यूटी नजर आ सकता है. It completely depends on me, how I perceive the world. And हमारा जो ये tribal beauty है, I am completely, I've seen so many girls, चाहे वो झारखंड से हो जाए, उड़ीसा से हो जाए, कहीं से भी हो जाए, girls are no less than any other girls. Yeah. Hi, ma'am. Yes. Yeah. Very well said, ma'am. So, ma'am, from your journey has been a very long way. So, from which age did you start your journey, and who inspired you? Okay, this is a very tough question. Who inspired me? Because I never thought, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मॉडलिंग में कभी, you know, कभी जाऊंगी. That was never my career. I rather wanted to become an air hostess. But then I did watch FTV. मैं FTV बहुत देखती थी and I loved the fashion sense. I loved the style. I loved everything. फिर धीरे धीरे when I was in my graduation, I got interest because of my photographer friend, Ankita. She had interest in photography and she liked clicking me. I used to be her first model. And then I got chance, you know, maybe ये destined था मेरे लिए. I never thought of being a model ever. And then somehow God made me show the way and I found it. And then I got my first chance at NIFT, Annual Awards show. और वहाँ पे मैंने walk किया पहली बार. And that's how it started. What was the first title that you got? Okay. My first title was back in 2014 when there was this workshop of Dabbu Ratnani sir. I hope सबको पता है Dabbu Ratnani sir is the celebrity photographer of India. And उनका एक workshop होने वाला था यहीं उड़ीसा में. तो एक model hunt organize किया गया था. And to be frank, I didn't know anything about modeling. So I just participated. देखते हैं क्या होता है. And then I participated and then somehow I cleared all the rounds. And then yes, I won it. Dabbu Ratnani sir chose me. I was really lucky to get clicked by him. Yeah. That was so nice, ma'am. So, how did you feel after that? I was like overwhelmed. Everybody knew me. Dabbu Ratnani ने कुमुदिनी को shoot किया. That was like on fire. Like, how was the reaction of people after that? First of all, nobody knew me properly. And Okay. that was like a spark happened to me ki Dabbu Ratnani sir clicked me. Like, oh my goodness. That was the starting, very good starting back in 2014. Okay. So, was there, did you face
any bad phase through your journey, That whether has to it be be. from the beginning? That has to be. That is a part of life. Without the bad situations, how would you learn? So how did you like how did you deal with it? ग्रेजुअली शुरू में कोई नहीं सिखाएगा आपको, कोई नहीं बताएगा क्या सही है क्या गलत है। दिमाग का रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सो धीरे धीरे मेरे को भी बहुत सारे फेक लोग मिले, जैसे कि मेरे को फेक होप्स देने वाले, मॉडलिंग में ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे। बट मैं कभी गलत जगह इसलिए नहीं फंसी बिकॉज I kept my eyes open, I kept my brain open. So that is very important for every single girl. लड़कियों को ऐसे ही बहुत लोग बुद्धू बनाने आ जाते हैं, बहुत you know, in fact प्रॉपर पेपर्स के साथ, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ आते हैं, फिर भी वो फेक होते हैं। तो यू हैव टू कीप योर आईज ओपन एंड ब्रेन, क्योंकि स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये तो कंपलसरी होना ही है। यू हैव टू मीट फेक पीपल। पहली बात, आपको 100 में से 90% फेक मिलेंगे, 10% सही मिलेंगे। So like आपको दोनों तरफ से प्यार भी मिला था and you had gone through bad phase too. And yes, co-models में जलन तो ये तो भाई होगी ही। But then exactly. you cannot distract yourself। और प्रॉब्लम्स तो सबसे पहले फैमिलीज में यूजुअली आती ही है। छोटे कपड़े, स्पेशली आपके घर वाले बोले ना बोले, आपके पड़ोस और आपके रिलेटिव जरूर बोलेंगे। Exactly. तो शुरुआत में कैसे शुरुआत में घर वाले सपोर्ट किया था या फिर हाउ डिड इट गो? बिकॉज दैट इज वेरी ट्रू। हमारी फैमिलीज में आपको तो पता ही होगा कि हमारे फैमिलीज में ये सब चीजें मॉडलिंग एंड ऑल, आई मीन किसी को भी बोल दीजिए मॉडलिंग, नहीं, इसमें क्या कोई फ्यूचर नहीं है। पहले तो यही बात आती है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की सोच की तरफ से देखा जाए तो हाँ, इसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। नॉर्मल बाकी सारी जॉब्स में क्या है, आपको इंटरव्यू क्लियर कर दिया, हाँ आप जॉब मिल गया, आप बैठ गए आराम से। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यू हैव टू फाइट एवरी सिंगल डे। एक तो आपके 1000 कंपिटिटर्स, ऊपर से आपके पड़ोस वाले, आपके फैमिलीज एंड ऑल, बहुत टेंशन है। तो फैमिलीज का यूजुअली प्रॉब्लम ये होता है कि वो चाहेंगे कि हमारी बेटी इतना स्ट्रगल क्यों करेगी, वो आराम से एक बैंकिंग का जॉब, एक टीचर का जॉब करके आराम से रह सकती है। मॉडलिंग वाला जॉब में एक तो बहुत खतरा होता है, तो पेरेंट्स यूजुअली मना करते हैं। बट देन मैं जिद्दी हूँ, बहुत जिद्दी हूँ, मना लिया मैंने अपने पेरेंट्स को। That was क्या बोलेंगे मैम फिर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे ट्राइबल लड़कियों को कि अगर ऐसे सिचुएशन उनके पास आए, जैसे हमारे ट्राइबल लोग ऐसे बहुत मानते हैं कि एक छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, और फिर दिस ईयर बाहा मैगजीन इज गिविंग अ प्लेटफॉर्म फॉर मिसेस टू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो आज भी ऐसे बहुत सारे फैमिलीज है हु बिलीव दैट आफ्टर मैरिज गर्ल्स कैन नॉट गो आउटसाइड, लाइक खाना बनाना है, बच्चा पालना है, दैट्स ऑल। सो व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? प्रेजेंट में जियो, दिस इज 2020। दिस इज 2020। आई अंडरस्टैंड हमारे फैमिलीज में जनरेशन गैप बहुत रह चुका है, तो अभी के 80 साल उनको हम नहीं बता सकते हैं कि हाँ छोटे कपड़े पहनना या बाहर घूमना, रात के 12 बजे तक घूमना या मॉडलिंग के जॉब्स करना, कुछ भी we cannot tell them. लेकिन the young generations, you have the future in your hands. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पेरेंट्स के डिसरेस्पेक्ट करो या आप, बिकॉज सी जनरेशन गैप ऐसा है कि आप एक दिन में ठीक नहीं कर सकते हो, आप ठीक ही नहीं कर सकते हो। आप बस ये कर सकते हो कि कॉम्प्रोमाइज आपको कहीं ना कहीं बीच में करना होगा एंड एडजस्ट करना होगा। बट देन live in 2020। बहुत कुछ बदल चुका है,
एंड आपको भी बदलना होगा। अगर आप पीछे रह गए, आप हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। तब आप किसी को दोष नहीं दे सकते हो कि मैं क्यों पीछे रह गई। सोच बदलना है, दैट्स ऑल। यस, बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बड़ा सोचेंगे तो बड़ा काम कर पाएंगे जिंदगी में। हाँ, बड़ा सोचिए जरूर, लेकिन उस हिसाब से स्टेप्स भी लीजिए, क्योंकि सोचने से ज्यादा स्टेप्स लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। या एंड सही स्टेप्स, गलत रास्ता नहीं। या वेल सेड मैम। आप टू बी ऑनेस्ट, बाय टॉकिंग टू यू आई फील दैट आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजर चुके हैं एंड दैट मेड यू स्ट्रांग। यस। Am I right? I don't know, I'm just Yeah. guessing it, like what I felt, I said that. यस, आई स्टूड स्ट्रांग। मैं एक और बात बताऊंगी सारे जितने भी मॉडल्स हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि देखो, मेहनत करना मत छोड़ो। कभी कभी 2 साल लगता है, कभी कभी 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए कि एक लड़की मॉडलिंग कर रही है और उसका 5वां साल में उसका, वो जिस तरह से मेहनत कर रही है, 5वें साल में उसका सक्सेस लिखा है। लेकिन वो लोग इतने जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं कि वो चौथे साल में ही वो लोग बैकआउट कर लेते हैं। तो वो लोग नहीं देखते कि और बस Give एक up साल कर बाकी देते था उनको सक्सेस पाने का। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रुकना नहीं है। यू नेवर नो, मैंने आज छोड़ दिया, पता चला मेरे को ओ शिट, कल को मेरा सक्सेस था ही और मैंने छोड़ दिया। Yeah, या नेवर स्टॉप। exactly. So मैम, आप इतने सारे मॉडल्स को ट्रेन कर चुके हैं, जैसे आई सेड यू आर एन ऑफिशियल रैम्प ट्रेनर इन, like you train in Fashion Villa in Orissa. ओडिशा So फैशन विला। what according to you, yes, so what according to you should a girl carry to be a model? पहली बात, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। दिमाग कहीं भी कुछ भी हो जाए छोड़ के मत जाओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान ने दिया है। पहली बात तो जानो कि हु आर यू। देखो, सपना देखना अच्छा है, लेकिन जबरदस्ती का कुछ भी, अब मैं बोलूंगी नहीं मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं एस्ट्रोनॉमर बनूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो अभी अगर मेरे को मॉडलिंग में जानी है, मेरे को मॉडलिंग के बारे में पढ़ना है, रिसर्च करना है। ऐसा नहीं कि हाँ एक कपड़े पहन लिए, फोटो उठा लिया, नहीं। यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू रीड, लर्न। उसके बाद नो योर सेल्फ। तुमसे बेहतर दुनिया वाला नहीं जान सकता कि तुम क्या हो, क्या कर सकती हो, योर पोटेंशियल वो आप खुद जानोगे, है ना। तो फर्स्ट नो कि आप किस में फिट हो। आप लाइक प्रिंट शूट्स के लिए सही हो, आप रनवे के लिए सही हो, पहले पता करो। आपकी हाइट कम है, ठीक है, आप रनवे में नहीं जा सकते हो, आप प्रिंट शूट्स में जा सकते हो। लेकिन अगर आप टॉल हो, यू कैन गो फॉर रनवे। तो वो सब रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिसर्च, हर चीज आपको ना कोई बताएगा नहीं, खुद चीजें खुद सीखनी पड़ती है। Exactly. Very well said, ma'am. Okay, ma'am. I came across your bio, and then I got to know that you won Alma Fiesta at 2017. So, what actually is Alma Fiesta? What Alma actually is that? Fiesta is the annual function of IIT. वो लोग ने नाम दिया है Alma Fiesta, लेकिन जो फैशन शो था उनका, उसका नाम था आगाज। आगाज was the name of the model hunt जो Alma Fiesta में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। And आगाज means the beginning. Okay. So, what was your role on that, ma'am? That was a competition and I wanted to participate because उससे भी पहले 2 साल जब मैंने participate किया था, I lost it. मतलब मेरे को थोड़ा, because I have never been to a professional training, तो बहुत चीजें सीखनी होती है। मैंने उससे पहले मैंने 2 बार ट्राई किया था और मैं हमेशा
विनर को छोड़, मैं विनर तो नहीं बन पाती थी, लेकिन हाँ टॉप 10 में आती जरूर थी। तो आई यूज टू ऑब्जर्व कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और तब मैंने एक चीज नोटिस किया, मेरा वॉक सही था, नॉट परफेक्ट बट सही था। मेरी प्रॉब्लम आई जब मेरा स्टाइलिंग में, सी एज ए मॉडल यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, बेसिक मेकअप से लेके वॉक से लेके स्टाइलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो फाइनल राउंड था अल्मा फिएस्टा में, आगाज में, देयर यू हैव टू चूज द क्लोथ्स एंड यू हैव टू स्टाइल आउट योरसेल्फ, एकदम खुद को स्टाइल करना है। तो वहां पे स्टाइलिंग में मैं कर जाती थी। तो मैंने उसको प्रैक्टिस करी। जब तीसरे बार मैं गई पार्टिसिपेट करने, तो यस आई वॉन इट, बिकॉज मैंने जब सब लोग यहाँ पे सोच रहे थे ना, आई ट्राई टू थिंक हियर, और बस विनिंग दैट बिकेम वेरी इजी फॉर मी। एंड बिकॉज क्योंकि मैंने 90% का टारगेट नहीं किया, मैं 100 का 100 में टारगेट किया मैंने। तो हाँ, टारगेट मैंने 100 किया, तो मेरे को 90 के आसपास आ गया। और याद रखना है, कभी भी अपने कंपटीटर को कमजोर नहीं समझना है, कभी नहीं, वो गलती कभी नहीं करना। मैं आई प्रे कि जो भी ट्राइबल लड़कियां हमारे कॉम्पिटिशन्स में आएंगे इस बार, they'll get something, they'll get to learn something from you. That's what I pray now. Okay मैम, आप इतना आप अभी एक प्रोफेशनल मॉडल हो and you worked approximately in 230 ramp walks. So you have lots of experience. So according to you, how should a tribal girl represent herself if given chance? पहली बात तो व्हेन यू वॉकिंग, सी आई कैन नॉट, अभी तो मैं यहाँ पे आपको वॉक तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आपको हर आउटफिट में पहली बात प्रैक्टिस करनी है। सारे आउटफिट्स के वॉक अलग होते हैं। उस वॉक मतलब वो जो आप आउटफिट पहनोगे ना, एक बार उसी आउटफिट में वॉक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेक श्योर यू नॉट लुकिंग डाउन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप जो हील्स पहनोगे, मेक श्योर यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दैट। ऐसे नहीं कि कल ही मैंने एक नया हील्स खरीदा और मैं उसी को पहनने चली गई। नो, नेवर डू दैट मिस्टेक। आप उसको लाओ, नए शूज अगर आप ला रहे हो, नए हील्स ला रहे हो, उसको आप पहनो, उस पे पहन के आप 1000 बार वॉक करो, एंड फिर व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट देन ओनली वॉक ऑन द स्टेज। एंड कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और गलती से अगर आपका ड्रेस फंस भी जाता है आपकी हील्स में, आराम से निकालो, द स्टेज इज योर्स। आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर कितनी हलचल मची है ना, वो सिर्फ आपको ही पता चलना चाहिए, बाहर बिल्कुल नहीं। एंड जब तक आप स्टेज से हटे नहीं हो, मतलब इनफैक्ट अगर आप स्टेज के कॉर्नर में भी हो ना, तो वहां पे भी मेक श्योर जब तक आपको ऑडियंस देख सक रहे हैं तब तक बिहेव लाइक अ मॉडल। एक बार आप बैक स्टेज पे चले गए, देन यू मे बिकम अ नॉर्मल गर्ल। ओके। एंड यस, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको मिरर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैम। मैम, जैसे कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैंने बताया दैट यू हैव वॉन सज्जो बज्जो रजा। आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, सज्जो। ओके रज्जो, राइट? रज्जो या रज्जो। ओके, सज्जो ओके, सज्जो बज्जो रज्जो। सज्जो बज्जो इज यूजुअली जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, सजना सजना, मैं सज रही हूँ। तो उड़िया में सज्जो मीन्स ब्यूटिफाइंग योरसेल्फ। तो सज्जो बज्जो, रज्जो इज अ उड़िया फेस्टिवल। रज्जो इज एन उड़िया फेस्टिवल ओके, उड़िया फेस्टिवल जो हर साल अराउंड जून में ही होता है। या okay, so that you won on 2019, and that was organized by FFM 93.5 and that Lalchand Jewelers also. So what actually is Sajjo Bajjo Rajjo? Like, what was your role on that?
या बेसिकली दैट इज अ कंपटीशन जो हर साल होते हैं रोजा के टाइम पे। देखो, रोजा इज अ फेस्टिवल फॉर women and that is for basically for mother earth। हमारे जो मदर अर्थ है उनके लिए होता है। तो उस 3 दिन में रोजा होता है अराउंड जून 13, 14, 15, ये 3 दिन होता है। तो उस टाइम पे ना रोजा के टाइम पे लड़कियां सजती सवरती है, कोई काम वाम नहीं करती है, इवन फार्मिंग वगैरह भी नहीं होता, लाइक मिट्टी खोदा खोदी नहीं करता है। तो उस टाइम पे भूमि पूजन होती है। कहा जाता है कि हमारी जो मदर अर्थ है वो उस टाइम पे ब्लीड करती है, मतलब शी गेट्स अ पीरियड्स, सो शी इज अ ब्लेसिंग एट दैट टाइम, शी इज वेरी फर्टाइल। तो इसीलिए दैट इज द रिप्रेजेंटेशन कि इस टाइम पे हम लड़कियों को भी उस टाइम पे काम नहीं करना है एंड सजना सवरना है और मस्ती करना है। सो दैट इज बेसिकली द फेस्टिवल ऑफ फॉर द वुमेन। और उस टाइम पे वुमेन को ही सेलिब्रेट करने के लिए दिस कॉम्पिटिशन्स हैपन, और भी बहुत सारे होते हैं। Raja is basically, it's a festival that happens for Odias in Odisha. तो इसी खुशी में ये सौजे बाजे रोजा हुआ था और मैंने पार्टिसिपेट किया था। The reason I wanted to participate because रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी सीख रहे हो ना, आप जितना भी सीख रहे हो, आप जब तक एग्जाम्स नहीं दोगे ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ कहाँ आपके प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है। तो इसीलिए मैं पार्टिसिपेट करती हूँ इन बिटवीन सम कॉम्पिटिशन्स, ताकि मेरा रिविजन होता रहे। So I was the model, I participated and I won it. आपकी आवाज कट जा रही है। I guess there is some network issues. Okay, is it audible now? No, ma'am. Okay. Is it audible now? Yeah, but somewhere, I guess the network is cutting somewhere. Mm-hmm. Okay. Am I audible, ma'am? Yeah, you are clearly audible. Okay. I guess there is some network issues from your side क्योंकि आप जब बीच बीच पे बात कर रहे हैं ना, like your call is being stuck, showing something like that. Okay. Should Can I you hear me, connect ma'am, again now? or something? Yeah, I can clearly hear you. Okay, so let's get into the point. I was asking now, the main question is that like you won Impress Universe 2018. Mm-hmm. So how was life after that? And tell us about that event, about your competitions. Yes. Impress Universe was one of my life-changing incidents that ever happened in my life. Am I audible to you? No, ma'am, your voice is just cutting. Okay, what do I do now? Yeah. Okay. Am I audible now? Yeah, you're audible, but your voice is a bit echoing. That's fine, ma'am. You can. Should I disconnect and connect again? Can you hear me, ma'am? Disconnect. Can you hear me now? Am I audible now, ma'am? You are audible to me, but no. Okay. Yes, ma'am. You can. We can continue it. I guess your network is coming, going. It's being like that. Yeah. Is it okay now? Yes, it's okay now, ma'am. Yeah, it's okay. Yeah. Yeah. Okay. That's fine. Yeah. Yeah, I was asking. You won Impress Universe 2018. So how was life after that? Impress Universe was a life-changing experience for me because I got the chance to meet people from all around the world. Is my voice breaking? Yes. Okay, hold on. Sorry, there is again, I guess there is some technical issues now. Should we write back?
Hi, Yes, am I ma'am. audible? Yes, ma'am. This Okay. network is disturbing. Uh-huh. No Am I problem, ma'am. clearly We can audible? continue. Yes, yes. Now you're clearly audible. Okay. So yes, Empress Universe was a life-changing experience for me as I met several people from all around the world, and I also got the chance to meet Alessia Raut. Alessia Raut is the official grooming trainer of Miss India. Okay, Yes, that's so I great. got the chance. I got trained from her and I got to know a lot of things from her. So that was a life-changing experience. मेरा पर्सनल ग्रूमिंग बहुत सही से हुआ. Hello, ma'am. Yeah. Can you Am hear I me? audible? Yeah, I can clearly hear you. There is some technical issues from your side, maybe, ma'am. Oh my goodness. Yeah, now it's now it's okay. Now it's now it's Okay. fine. Okay. Is it okay Okay. now? Yes, yes. Okay. Yeah. So the thing is, like, how life changed after winning Impress Universe. Yeah, I made new contacts. You got how Uh, many achievements did you get after that? After that, I got to meet many people, and that's how I improved. I got more works. मेरे को बहुत सारे काम मिले, बहुत सारे projects मिले, and I'm happy. That was a life-changing experience, and not only in India, I'm going to work abroad also. Your voice is breaking again. Oh my goodness, what do I do now? Okay, Shall we start the live once again, ma'am? okay. Will it be better? Yeah. Just a minute. So sorry for the network, the technical issues. So sorry, ma'am. No, it's completely fine. Am I audible now? This is not. Yes, 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 exactly. Absolutely, you're audible well now, ma'am. Yeah, yeah, Yes. So, hello, ma'am. yeah. Yes. So my next question is like, what according to you, women empowerment means? Women empowerment. First, I would say empower yourself as a woman. If you can empower yourself, then only you can empower others. Okay, that was a very perfect and a short answer to this question. Yes. And that is actually very So, important ma'am, if you you are. go for any kind of pageants, you have to answer very shortly and very practically and with smart answer. That is very important. Nobody is going to hear your 2 3 paragraph answers. You have to be very short and very crispy. Hello, ma'am. Yeah. Am I audible now? Yeah, you are always audible. I don't know. Your voice is breaking, so I think like the network issues might be from my side. Okay, you are very clearly audible to me. Okay. So, ma'am, you were a face of Pearls and Pebbles and uh,
Salon and you B21. remain brand ambassador of different places. Mm-hmm. So I would like to, there is a request like, can you give some tips and makeover tips and stylish dress over to our tribal girls from your side? Okay. First, as I said, you have to do a lot of research and learning from your side. Can you hear me? Can you hear me? Ma'am? Yes, now My goodness. Can you, am I audible to you now? a bit. Oh my goodness. Oof. Hello, ma'am? Yeah. Am I audible? Yes. Hello. Yeah. Yeah. Okay. Let me, should I disconnect again? Or is it Yes. audible? Yes, ma'am. Just a minute. Just a minute. Yes. Hello, ma'am. So sorry. Yeah, that's completely okay. Am I audible? Is it clear? Yeah. Is it clear now? You are clear. Am I audible? Yeah. Now you're perfectly audible, ma'am. I don't know Okay. why there So is what so was I much saying? network issues today. Yeah. Yeah, you were a brand ambassador of different places and brands, and then a face of Pearls and Pebbles Salon too. So, I would request you to give some makeover tips and dressing and stylish tips to our tribal girls who are coming Mm-hmm. up for the Okay. auditions of Baha Magazine. Yeah. Am I clearly audible now? Yes, ma'am, perfectly. Okay. So the first thing that I would want to tell all the girls is, first of all, never whiten your face at all. Yes, I've seen Okay. girls doing that. आपके गले का रंग कुछ और होता है और शक्ल की रंग कुछ और होती है. Stand with your color. आपका जो रंग है उसी का फाउंडेशन यूज करो, उसी का ही. और सबसे इम्पोर्टेंट एज आई सेड, लर्निंग नेवर स्टॉप्स. जब तक आप हो इस दुनिया में, लर्निंग नेवर स्टॉप्स. सो आप यूट्यूब जाओ, आप रिसर्च करो, आप देखो, इतने सारे मेकअप के वीडियोस हैं, इतने सारे स्टाइलिंग टिप्स हैं. आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एज अ मॉडल यू शुड नो. आपको बेसिक मेकअप आना चाहिए, आपको बेसिक हेयर स्टाइल्स आने चाहिए, और आप जो भी पहनते हो कपड़े, जरूरी नहीं कि हाँ ये एक्सपोज करके पहनो तो ही आप अच्छे लगोगे. नो, इट शुड लुक गुड ऑन यू, इट शुड कॉम्प्लीमेंट यू. और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप डार्क हो तब काले रंग के कपड़े नहीं पहन सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. और अगर आप एकदम डार्क हो तो आप फ्लोरेसेंट नहीं पहन सकते, आप नियॉन नहीं पहन सकते. डोंट एवर डू दैट.
आपको सारे रंग सूट करेंगे, सारे कपड़े सूट करेंगे, बस आपको स्टाइलिंग सही से करना होगा. यू शुड नो व्हाट सूट्स यू द बेस्ट. ये आपको कोई नहीं बताएगा. मेक श्योर लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर. और आप ये मत देखना कि हाँ उसने ये पहना है तो मैं ये पहनूंगी. नो, आपका बॉडी टाइप अलग है, आपका फेस कटिंग अलग है, आपके फीचर्स अलग है. आप अपने हिसाब से पहनो. लुक एट योर सेल्फ. अपने आप को स्टडी करो. आप इधर उधर नहीं करके, इधर उधर से नहीं देख के आप अपने आप को देखो मिरर पे, तो आपको क्या जच रहे हैं. गूगल कीजिए. मैंने गूगल से ही आधी चीजें मेरे को पता चली है. वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन टोन्स. एक होते हैं वार्म स्किन टोन और एक होता है कूल टोन होता है हमारे कलर्स के. तो कूल टोन के लिए कौन कौन से कलर्स जचते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेयर कलर करना चाहती हूँ या फिर मैं आई शैडो के कलर्स देखना चाहती हूँ, क्या कौन सा कलर मेरे को सूट करेगा, या मैं लिपस्टिक के शेड्स देखना चाहती हूँ, तो पहले मेरे को चेक करना होगा कि मेरा टोन क्या है. डू आई कम अंडर द वार्म टोन और कूल टोन में आती हूँ. यूजुअली आप धूप में देखना आपका जो वेन्स है ना, जो नसें, वो कौन से कलर का है. अगर आपका ग्रीन है तो आप वार्म में आते हो, और अगर आपका ब्लू दिखता है तो आप कूल में आते हो. उसी के हिसाब से आप गूगल कर सकते हैं. आप रिसर्च करो, आप देखिए कि कूल अंडरटोन्स में क्या क्या सूट करेगा और वार्म में क्या क्या सूट करेगा. एंड दैट इज इम्पोर्टेंट. तो ये सब आपको रिसर्च करके ही पता चलेगा, चाहे वो हेयर कलर हो या आपका लिपस्टिक का शेड हो या आई शैडो का कलर हो, कुछ भी. इसलिए मैंने बोला लर्निंग नेवर स्टॉप्स. यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग. चाहे आपको कोई बताए ना बताए, रिसर्च कीजिए, सारे एक एक करके आपको बातें पता चलेंगी. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे कि मैंने बोला आपको, हील्स आप नया पहन रहे हैं, पहली बार पहन रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिए. उसके बाद स्टेज पे आइए एंड उतने का ही हील्स पहनिए जितने का आप कैरी कर सकते हो. जबरदस्ती का 6 इंच का मत पहनना. एकदम आप जिस पे कंफर्टेबल हो. कोई कोई होते हैं, हाँ हील्स पहना इज इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ मॉडल. प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको कंफर्टेबल हो जाओगे आप. हील्स में प्रैक्टिस कीजिए, नॉर्मल पैर में एकदम प्रैक्टिस नहीं करना, हील्स पहन के ही करना. एंड वन मोर थिंग, ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके बाल सही होने चाहिए, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ मॉडल. एंड व्हाट इज अ मॉडल? A model is someone who represents, because you will be the face that will represent. You cannot be just a normal girl. आपके अगर नेल पेंट्स आपके आधे अधूरे हैं, इधर आप पूरा हटा दीजिए या फिर आप पूरा अच्छे से लगाइए. और जरूरी नहीं कि आप लंबा नेल रखो, वैसा कुछ नहीं है, या फिर आपके बाल कलर्ड हो, वैसा कुछ नहीं है. मेंटेन करना इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट. जैसे मैंने कहा, हाइड्रेशन. और हाँ, मॉडलिंग के चक्कर में खाना पीना एकदम डाइट खत्म करके एकदम खाना पीना छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छे से खाना पीना कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आपका हेल्थ आपको साथ नहीं दिया तो आप क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे शो करने के लिए, बताइए मुझे. हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द फर्स्ट थिंग, कोई इंसान आपको जब देखेगा तो पहले क्या देखेगा, आपका अपीयरेंस. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंसेस. एंड यस, एक और बात मैं कहना चाहूंगी, बेसिक मेकअप तो आपको आना चाहिए ही चाहिए. और मेकअप के आजकल तो हर एक लड़की को पता ही है, विच इज मैट, विच इज ग्लॉसी. ये तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन यस, मेक श्योर आप जब भी सो रहे हो मेकअप उतार के ही सोइएगा अच्छे से. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सैलून जाके जबरदस्ती का इतना रुपए खर्च करके मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. यू शुड नो हाउ टू मेंटेन योरसेल्फ स्मार्टली. आप घर पे भी मेंटेन कर सकते हो अपने आप को विद प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फूड, एनफ हाइड्रेशन, फ्रूट्स खाओ. एंड उसके साथ साथ मेक श्योर you just जितना नॉर्मल ग्रूम कर सको. योर नेल्स, आप नॉर्मल तो नाखून बचपन में काटते ही थे, अभी भी वैसे ही कीजिए. यू डोंट हैव टू कीप एकदम लंबे नाखून. अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो करो. बाल का भी वही है, स्किन का भी वही है. स्किन का इज जस्ट नॉर्मल फेस वॉश, स्क्रबिंग,
एंड देन व्हेन यू आर यूजिंग आपके फेस के हिसाब से जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, अगर आपका ऑयली है तो ऑयली प्रोडक्ट, ड्राई है तो ड्राई के लिए प्रोडक्ट्स, उसके लिए भी आपको रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पर्सनली मी, जब भी मैं किसी स्टोर पे जाती हूँ खरीदने के लिए ना, आई गूगल इट फर्स्ट, मैं उसके रिव्यूज चेक करती हूँ एंड देन आई गेट इट। बिकॉज मेरे उसको इंग्रेडिएंट से लेके सब कुछ का यू नीड टू हैव एनफ नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाई अगेन टेल यू, कीप ऑन रिसर्चिंग, नेवर स्टॉप। या Thank you, एंड ma'am, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कॉन्फिडेंस इज अ मस्ट। सो आप कुछ लगाओ ना लगाओ, कॉन्फिडेंस लगा के ही जाना। well said, ma'am. Thank you for all this, whatever you have said. आई प्रे कि जो भी लड़कियां आ रहे हैं हमारे ऑडिशंस में अभी वहाँ मैगजीन के लिए, they learn something from these things what you have said and perform and give their best. So a very big thank you for whatever you have said. I myself didn't know कि ऐसा भी चीज करना चाहिए बोल के. Yes. So thank you, ma'am. मैं चेक कर रही थी अपने वेन्स की कौन सा कलर का है. धूप में तो चेक उसके करना, बारे में you'll see रिसर्च, अगर आपका, हाँ एकदम से, मतलब अगर मेरा ग्रीन कलर है तो आई विल वार्म, रिसर्च ऑन दैट वन. हाँ वेन्स. वार्म अंडरटोन्स में जो भी शेड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई हेयर कलर हो, हाइलाइट्स हो, आपके बाल के हाइलाइट्स, लो लाइट से लेके सब कुछ, अगर आपका वार्म है तो आप आराम से गूगल सर्च कर सकते हो कि वार्म अंडरटोन्स के लिए क्या क्या कलर्स, शेड्स अच्छे रहेंगे, और कूल अंडरटोन्स के लिए क्या क्या शेड्स। तो पेल स्किन और नॉन ब्राउन स्किन में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। फॉर एग्जांपल रेड्स भी वैरायटीज के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के रेड कलर्स होते हैं। तो कुछ रेड कलर्स उन पे जचेंगे, कुछ रेड कलर्स मुझ पे जचेंगे। आई एम वार्म अंडर स्किन टोन। हेलो मैम, आप इससे पहले जो बोले वो पूरा ब्रेक हो गया था आवाज. ओके, कहाँ से? वेन्स के बारे में बता रहे थे आप कि यस रिसर्च करना है. वार्म. यस, ये सब मेरे को रिसर्च करके ही पता चला। ये मेरे को किसी ने मुझे नहीं बताया, ये चीज किसी ने नहीं। वो मैं हमेशा चेक करती थी, सारे प्रोडक्ट्स चेक करती थी कि कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कंसीलर लेना चाहिए या फाउंडेशन लेना चाहिए, या मेरे को क्या लेना चाहिए, कौन सा शेड लेना चाहिए, कौन सा टेक्सचर का लेना चाहिए, मतलब कुछ होते हैं क्रीम बेस्ड होते हैं, कुछ लिक्विड बेस्ड होते हैं, तो मेरे को क्या लेना चाहिए या मूव लेना चाहिए मेरे को, तो वो सब भी रिसर्च करना पड़ता है कि आपके स्किन में कौन सा जचेगा। तो वो करते करते मुझे पता चला अबाउट वार्म एंड कूल अंडरटोन्स। यस, I'll definitely try. I myself, बाकी कोई करे या ना करे, I'll go and try myself first. आप जो भी बताइए. Yeah. So thank you, ma'am. What you have said, it means a lot. And ma'am, you were awarded as a glamorous model of Odisha by Glam. So what actually glam means? What, according to you, what actually can make a girl glamour? everything. The spark in her eyes, from her spark in her eyes to the way she dresses. क्योंकि first thing that people will look, उनको आपका अपीयरेंस दिखेगा, आपके बाल के तरीके, आपके जूते से लेके आपके कपड़े के चॉइस, और वो कपड़े आप पे कितने जच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मॉल पे गई हूँ, वहां पे मैंने एक ड्रेस देखी बड़ी सुंदर सी, लेकिन अगर वो मेरे बॉडी पे सूट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली मैं अच्छी नहीं लगूंगी। So glamour will make you when you do everything in a proper way. आपके बाल से लेके, आपके चेहरे से लेके, आपके आउटफिट से लेके सब कुछ। And yes, your shoes should also complement your outfit. Okay, that was a very nice answer, ma'am. And उसके साथ साथ एक्सेसरीज भी, राइट एक्सेसरीज, चाहे वो बैग्स हो, वॉच हो, ब्रेसलेट्स हो, नेकलेस हो, कुछ भी, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, सर से लेके पैर तक। एंड फॉर दैट अगेन रिसर्च। One more question. Is it necessary to wear, if I wear a black dress, is it necessary to wear black shoes? No. No. Okay. You can wear anything.
जब तक आप उसको कॉन्फिडेंटली कैरी कर रहे हैं तब तक यू आर द ग्लैमरस सेंशुअल गर्ल. I am asking this question from my own experience. यहाँ पे बहुत like there are lots of people when you dress up for something or when you're going somewhere, so they tell that don't wear this, you're not looking good. But आपको लग रहा है कि no, I am looking perfect. But when they are telling you no, you're not looking good. But ऐसा लगता है कि शायद मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ. So we go and just change up what we are wearing. But हमको मुझे लग रही थी कि I was looking perfect but people are telling me that I was not looking good. So in their word, I Don't went listen and to changed them. myself. Don't Yeah, listen to that's what them. I'm asking. Like, Never listen to people. Never listen to people. it's all about हाँ. comfortability. या आप किस में, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे को स्टाइल मारने के लिए मैंने हील्स पहन ली लेकिन अंदर ही अंदर मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, चुभ रहा है मेरे को. नो, कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप कंफर्ट नहीं हो तब तक आपका स्टाइल नहीं दिखेगा, आप कंफर्टेबल नहीं दिखोगे, चेहरे पे आपका स्ट्रेस दिख जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ. और हील्स भी आप एकदम से प्रैक्टिस कर करके ना हील्स को एकदम घिसवा दो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जो स्टेज पे जाओगे यू बी वेरी कंफर्टेबल इन योर हील्स. क्योंकि हील्स में चलना तो दूर की बात, हम जितने टर्न्स लेते हैं ना, ऐसे टर्न्स लेते हैं, लेफ्ट टर्न एकदम प्रॉपर राउंड टर्न, उसके लिए यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विथ योर हील्स. सो आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, मेक श्योर यू कंफर्टेबल. एंड यस, आजकल तो लड़कियां दे नो एवरीथिंग अबाउट, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स नो अबाउट फैशन. सो आप कोई भी कलर्स पहनो. इनफैक्ट आप जैसे बोले ब्लैक ड्रेस में यू कैन वेयर रेड, यू कैन वेयर ब्लैक, यू कैन वेयर एनीथिंग. ब्राउन पहन सकते हो, नियॉन कलर्स पहन सकते हो, एनीथिंग एनीथिंग. Yeah. और एक सवाल थी, मैं अभी याद की थी पर भूल गई. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. दिमाग में आ रही थी, मैं पूछूंगी बोल के आफ्टर हियरिंग या वो अच्छा ऐसा होता है. आई जस्ट चट करके निकल गया दिमाग से. पूछो. सो मैम आपकी मतलब you had a very long journey till until and unless you got your achievements. So can you share any of your experiences that inspired you or can inspire everyone who are watching you out there? Okay. Inspiration can come from anywhere. अब मुझे आप पूछोगे मेरी फेवरेट मॉडल कौन है, तो यस आई वुड से जीजी हडीड. शी इज वन ऑफ माय फेवरेट मॉडल एंड आई आल्सो फॉलो इरीना शेख. Okay. आई एम नॉट देयर फैंस, मतलब फैंस होने से जैसे कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो उनको क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है, वो सब मुझे नहीं पता. आई वॉच देम, आई वॉच देयर स्टाइल. और बाकी सबसे आप यू कीप ऑन वॉचिंग एफटीवी. एफटीवी में आप उस तरह के मॉडल्स को देखोगे, हाउ दे वॉक, हाउ दे प्रिपेयर, और इंस्पिरेशन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. आप जब भी कंपटीशन पे जाओगे, आप अपने को आर्टिस्ट, को कंपटीटर्स, उनसे आप सीखोगे, आप जजेस से सीखोगे, आप हर किसी से सीखोगे. इनफैक्ट मैं सारे गर्ल्स को बोलना चाहूंगी, वॉच मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के जो पेजेंट्स के फिनालेज होते हैं ना, आप उसको देखो. उनमें वो लोग कैसे आंसर करते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे बात करते हैं, उनका बात करने के तरीके से लेके सब कुछ. सुष्मिता सेन का वीडियो, उनका फाइनल्स जब था मिस यूनिवर्स बैक इन 2000 आई मीन 1994, उन्होंने किस तरह से आंसर दिया, कितने कॉन्फिडेंस के साथ. सोचो, मिस यूनिवर्स, शी वाज मिस यूनिवर्स. वो वीडियो मैं आज भी देखती हूँ तो आई गेट वेरी इमोशनल एंड शी इज a woman of substance. So you get to learn from everywhere. So मैं आपको suggestions दूंगी. आप ये मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ के वीडियोस आप जरूर देखो. सारे पेजेंट्स इस तरह के, क्योंकि ये सब प्रेस्टिजियस पेजेंट्स हैं. यहाँ पे किस तरह के कॉम्पिटिटर्स आते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और उनको क्या सवाल पूछते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रेन. आप अपना दिमाग खुला रखो. आपको कुछ आए ना आए, लेकिन यू शुड नो हाउ टू हैंडल इट. आपको बोलना आना चाहिए. और एक चीज मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी सारे मॉडल्स को, कि आप जब अपना इंट्रोडक्शन देते हो ना,
Make sure introduction में my name is कुमुदिनी पूर्ति, I am this much years old, मैं यहाँ पढ़ाई की और मैंने मॉडलिंग इतने दिन से शुरू की एंड मुझे ये पसंद है, मुझे गाना गाना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है एंड आई वांट टू बिकम अ सुपर मॉडल. दिस इज इनफ. दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में मैं दुनिया बदल दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी. नो, ये इंट्रोडक्शन में नहीं आता है. प्लीज मेक श्योर आपके क्या सपने हैं, आप क्या करना चाहते हो दुनिया के लिए, आप क्या बनना चाहते हो, वो अलग बात है. इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपका नाम, आप क्या करते हो, आपके पढ़ाई वढ़ाई कब से है, आप कहाँ से हो और आप मॉडलिंग कब से कर रहे हो या करने वाले हो, या इस कंपटीशन से क्या उम्मीद रखते हो. बस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक चीज जैसे मैंने बोला कि आपको आंसर्स आप जो भी पूछेंगे ना वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. थोड़ा टाइम लेके सोच के बोलो, बट आंसर ज्यादा लंबा नहीं करना, शॉर्ट रखना, क्रिस्पी रखना और वेरी, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. मेक श्योर आपके जो हैंड मूवमेंट्स, इट हैज टू बी वेरी परफेक्ट. और आपका पोस्चर, ये सब प्रैक्टिस ना आपको मिरर के सामने करना चाहिए हमेशा. एंड ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ बोल रहे हो तो ज्यादा देर के लिए ये नहीं करना है. जो भी बोलना है क्लियर बोलना है. थोड़ा सा इज ओके, बट ज्यादा देर के लिए इट साउंड्स वेरी बैड. एंड रिमेम्बर वन थिंग गर्ल्स, हमेशा आपसे बेहतर कोई ना कोई रहेगा. हमेशा उस चीज के लिए प्रिपेयर करो एंड दूसरों को बिल्कुल मत देखो. यू थिंक अबाउट 100 to 100. बाकी 80s पे लगा, 90s पे लगा, दैट इज ओके. एंड अपने कंपटीटर्स पे ध्यान देना बंद कर देना. बिल्कुल अपने कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ खुद पे. These are the tips. Exactly. That was आप क्या बोलेंगे मैम. थैंक यू. आप यही बोल पाएंगे फिलहाल तो कि आप इतना कुछ सिखा रहे हैं हमें और बाकी जो जितने भी लड़कियां हैं. सो मैं तो श्योर हूँ कि आप जितने कुछ भी बताए, आई डोंट थिंक दैट any of our tribal girls they knew all the things what you have said. So I hope they get something and they get into your tips and do perform well in the stage. So yeah, यही प्रेयर करती हूँ मैं. और फिर मैं तब कह रही थी कि एक सवाल आया था मेरा दिमाग में पर चला गया था. I want to ask it now कि this is for the starters, like जो भी freshers है, when they start coming up for modeling, तो उनको क्या heavy heels से शुरू करना है या with a light, like which is a lightweight weights. वेट ऑफ अ हील हेवी होना चाहिए या लाइट होना चाहिए? It completely depends. Freshers, आप अपने कंफर्ट जोन देखो. मैं वही बोल रही हूँ, आप कुछ भी पहन रहे हो, हील्स पहन रहे हो, जैसा भी हील्स पहन रहे हो. देखो फॉर एग्जांपल हर टाइप के हील्स होते हैं. पीप टोज वाले होते हैं, ओपन टोज वाले होते हैं. आप स्टिलेटोज में कंफर्टेबल हो या बॉक्स हील्स में कंफर्टेबल हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. एट द एंड आप कुछ भी पहनो, लेकिन आपको स्टेज पे यू हैव टू लुक कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल. और क्योंकि अगर आप स्ट्रेस हो रहे हो, आपको दर्द दे रहा होगा ना, तो वो आपके चेहरे पे दिख जाएगा. आप कितना भी मुस्कुराओ, दिख जाएगा चेहरे पे. तो हील्स उतने का ही ट्राई करो जितना आप ले सकते हो. लेकिन यस, ऐसा नहीं कि आपको फ्लैट्स में जाना होगा, आपको हील्स पहनना ही होगा. एंड मोर ओवर इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि याद रखना, कंपटीशन नेवर स्टॉप्स. आज आप हो, कल कोई और होगा. अगर आप जरा सा भी चुके, कोई और आपको ओवरटेक कर लेगा. तो आपको हमेशा प्रिपरेशन रखना पड़ेगा. एंड फ्रेशर्स तो जितना मैंने देखा है कि हाँ, दे गेट वेरी डेडिकेटेड. लेकिन इफ यू एवर गेट सक्सेस, ये मत सोचना कि वहां पे खत्म हुआ बात. समझना वहां पे परिश्रम और दुगना होगा. रिमेम्बर, सक्सेस मिला मतलब सोच लो कि माथे में एकदम से यू हैव टू एकदम बिठा लेना है कि परिश्रम बहुत बढ़ गया. तो क्योंकि हम 0 से 100 जाने में, मतलब 90 तक जाने में जितना मेहनत लगेगा,
90 से 100 तक आने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बहुत मेहनत, मतलब, और हमेशा बनाए रखना, बिकॉज आपको आज सक्सेस मिला, कल किसी और कोई और आ सकता है आपको आपकी जगह लेने, आराम से कोई भी आ सकता है। तो आपको वो चीज मेंटेन करने के लिए ना आपको और एकदम दम भर के मेहनत करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जितने बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, उनके पास हजारों फिल्म्स होती है, सब कुछ होती है, बट फिर भी वो लोग जिमिंग जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, डाइट पे ध्यान देते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव टू, दे नो इट, एक बार सक्सेस मिला तो यहाँ पे एंड नहीं है, यू हैव टू कीप ऑन प्रिपेयरिंग। सो फॉर द फ्रेशर्स मैं ये बोलूंगी, आप कोशिश करो, एंड जैसे कि मैंने बोला, रिसर्च, प्रैक्टिस, जैसे कि एक बेसिक मेकअप में क्या क्या जरूरत होती है, कौन सा कंसीलर हो या जो भी, एवरीथिंग मैटर्स। सो आपके स्किन पे क्या जच रहा है, क्या नहीं, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये सब आपको रिसर्च से ही पता चलेगा। यू हैव अ स्मार्टफोन एंड यू हैव द फ्री इंटरनेट, सो प्लीज, अगर आपको सीरियस मॉडलिंग करनी है, यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर सेल्फ, एंड डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेडिकेशन नहीं दे पाओगे, हाँ आज मैं ये फोटो उठा लूंगी डाल लूंगी, नहीं, एक दिन में प्रैक्टिस नहीं होती, एक दिन में कोई मॉडल नहीं बनता, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग ऑन। मैं 2014 से अभी भी जो तक मैंने सीखा है, खुद से सीखा, मेरे को अभी भी लगता है कि इट्स नॉट अनफ, आई हैव टू लर्न अ लॉट, क्योंकि हर साल नए फैशन आते हैं, नया ट्रेंड आता है, यू हैव टू कीप ऑन विद देम। आपने कि हाँ मेरे को तो ये आता था, मैं उतना तक रुक जाऊंगी, नहीं, नए फैशन आते हैं, नया ट्रेंड आता है, आपको उसके साथ आपको चलना होगा। तो इसके लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट, द हंगर टू लर्न। आपका ये भूख नहीं मिटना चाहिए, जिस दिन मिट गया समझ जाओ यू आर खत्म। या Well said, ma'am, as always. और फिर मैम आप you have achieved a lot. You are a supermodel and you are into a very good level now. So, what was your main motive for joining fashion? फैशन, अगेन आई वुड से, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी एवर इनटू फैशन, बट देन व्हेन आई केम इनटू फैशन, आई गेव माई हार्ट, आई गेव माई सोल। अभी 6 साल हो चुके हैं मेरे को, और ऐसा नहीं कि हाँ 6 साल हो गए तो आई एम अ सुपर मॉडल, नो, 6 साल बस। आई थिंक मैं लाइफ टाइम के लिए आई वुड लव टू बी कॉल्ड एज अ सुपर मॉडल। तो उसके लिए मेहनत भी वैसी करनी होगी मुझे, एंड आई ऑलवेज, मैं कोशिश करूंगी कभी मेरा ये भूख ना मिटे, और मैं हमेशा लर्न करती रहूं, एंड ट्रैक से बिल्कुल भटकना नहीं है। एंड हाँ, एक और चीज आई वुड लाइक टू मेंशन कि यूजुअली मॉडलिंग पीपल एंड अप विथ एक्टिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन पहली बात में, डोंट, लोग बहुत सपने दिखाएंगे, एंड स्पेशली लड़कियों को तो हजारों ऐसे इवेंट मैनेजर्स आ जाएंगे आपको सपने दिखाने, हम ये बना देंगे वो बना देंगे। प्लीज, मैं अभी भी बोलूंगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, पहले आप अपने आप को देखो, आप अपने आप को देखो, क्या आप उतने लेवल पे आए हो, क्या आप सर से लेकर पैर तक जितनी भी ग्रूमिंग आप कर चुके हो आपको आती है। एंड ग्रूमिंग का ये मतलब नहीं है कि आप सर से पैर तक सिर्फ सुंदर ही दिखो, आपका बोलने का तरीका भी, पता चला आप सर से पैर तक एकदम सुंदर दिख रहे, एकदम मुंह खोले एकदम से लोग खुशी खुशी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या बोलते हो, कब बोलते हो, कितना बोलते हो, वो भी दिख जाता है। तो जितना आप अपना सर से पैर तक की सुंदरता को नजर रखेंगे, उसके साथ साथ अपने जुबान पे भी ट्रेन कीजिए। आपका जुबान भी बहुत मायने रखता है, व्हेन, बिकॉज आफ्टर ऑल मॉडलिंग सिर्फ शक्ल से नहीं, इफ यू गो फॉर द ब्यूटी पेजेंट्स, वहां पे आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, एंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड से स्टॉप ट्रीटिंग योर सेल्फ, आप एक कैटेगरी में मत जाओ कि हाँ आई एम अ ट्राइबल गर्ल, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट, नो, नो, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपने कुछ देखा है, आप अपना फ्यूचर उसमें देख रहे हैं, अपने आप को उतना काबिल बनाइए। और काबिल बनाने के लिए एक दिन दो दिन में नहीं होता, काबिल आपको रगड़ रगड़ के बनना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यस।
So, ma'am, I don't know whether I should ask this question or not, Please but ये go on. सबके लिए better होगा. Yeah. How much can one earn if they join or come up to your level? Once again, How much can one earn if they join fashion or reach to that position? फिर यहाँ पे डिपेंड्स ऑन यू. अगर मेरी मेहनत उतनी अच्छी रही, मेरी कोशिशें उतनी अच्छी रही, मेरी डेडिकेशन उतनी रही, तो ऑफ कोर्स यू मे अर्न अप टू 1 लाख पर मंथ और मोर. बट देन अगेन ये आप पे निर्भर करता है. आप 2 साल में इतना इनकम कर रहे हो या आपको 10 साल लगेंगे, ये आप पे निर्भर करता है. कंप्लीटली आप पे. आप ही हो, आप ही सब कुछ हो. आप पे निर्भर करता है कि देखिए फॉर एग्जांपल अब मैं आईएएस के प्रिपेयर कर रही हूँ. आईएएस का प्रिपरेशन मैं 1 साल में कंप्लीट करके मैं सारे एग्जाम्स क्रॉस कर ली, या मेरे को 5 साल लग जाएंगे आईएएस के एग्जाम्स पास करने में. वो मेरे पे डिपेंड करता है ना, मैं कैसे मेहनत कर रही हूँ. सेम. Thank you, ma'am, for what you have said. And lastly, there is a question. Like, हमारे auditions चल रहे हैं and there are participants of both Miss and Mrs. So what message do you want to give them? ताकि वो लोग और भी confident हो पाए and they can give their best and be more confident. Remember, I would say confidence lies in you. ये आपको कोई बता सकता है, लेकिन बाहर लाने का कोशिश तो आप ही कर सकते हो. अब मैं आपके आत्मा को थोड़ी बोल सकती हूँ नहीं बाहर आओ, कॉन्फिडेंस दिखाओ. ये आपको खुद ही करना होगा. मैं बोलूंगी आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए. यू हैव टू स्माइल. आपको कैसे स्माइल करना है, आपका फेस का एंगल क्या है, बहुत कुछ है. ग्रूमिंग डज नॉट हैपन इन अ डे. यू हैव टू कीप ऑन ग्रूमिंग योरसेल्फ. हर दिन ग्रूम कीजिए. और जैसे कि मैंने बोला, जितनी देर पे आप स्टेज पे हो, मेक श्योर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. एकदम कॉम्पिटिटिव को देखना ही नहीं है. यू आर द बेस्ट. लेकिन हाँ, डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट. बिल्कुल नहीं कि हाँ मैं ही जीतने वाली हूँ. नो, यू नेवर नो. ऐसा कभी कभी होता है कि हाँ वो तो इतनी खास नहीं दिख रही है, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, लेकिन पता चला वो विनर बन गई. व्हाई? कॉन्फिडेंस. किसी को कम नहीं समझना है. ये गलती हर एक फील्ड के लिए. किसी को कम नहीं समझना है, चाहे वो कोई भी रेस से हो, कोई भी कास्ट से हो, कहीं से भी हो. किसी को कम नहीं समझना है. रिमेम्बर, हर कोई एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. प्रैक्टिस. अगर आप मॉडलिंग को सीरियसली ले रहे हो ना, हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, रिसर्च कीजिए. इतने सारे ब्लॉगर्स आ चुके हैं, इतने सारे स्टाइलिस्ट आ चुके हैं, सबको फॉलो कीजिए, उनका स्टाइलिंग टिप्स देखिए. कोशिश कीजिए, अपने आप कोशिश कीजिए. आप खुद देखिए, मिरर में देखिए मैं कैसे लग रही हूँ. एंड आप कुछ किसी सब सजेशंस भी ले सकते हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है. ये आप कोशिशें करती रहेंगे तो ही आपको पता चलेगा आप गलत जा रही है नहीं जा रही. फॉर एग्जाम्पल रणवीर सिंह, उन्होंने एक लहंगा पहना था. उन्होंने दैट आउटफिट वाज लाइक अ लहंगा. तो ये पहनना मतलब अभी कोई भी बोलेगा कि क्या ये लड़का एक लहंगा पहन रहा है, बट देन ही कुड कैरी इट आउट, सो इट बिकेम अ फैशन ट्रेंड. उन्होंने पहले पहना तो वो ट्रेंड बन गया, उसके बाद सबने पहना. That is how it happens. So you have to be very confident. आप क्या पहन रहे हो क्या नहीं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला ब्लैक ड्रेस के नीचे हम दूसरा कोई कलर. आप स्टडी करो, आप देखो. अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बता रही हूँ, मेरे बाल के कलर ऐसे हैं, ठीक है, दिस लुक्स गुड हियर. फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे याद है मैं लास्ट ये लॉकडाउन से पहले मैं अपने मासी के गाँव गई थी. वहां पे मेरे को एक औरत बोलती है, बेटा सरसों का तेल लगाओ बाल काले हो जाएंगे. Oh God. तो मैं उनको थोड़ी बोल सकती हूँ, समझा सकती हूँ. बताओ, वो अपने लेवल में है, वो अपना सोचती है, उनको लगता है हाँ काले बाल सुंदर होते हैं. और हम इधर रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, तो हमको पता है व्हाट इज द फैशन सेंस. सो
you should know what you're doing. आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, और आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. हाँ, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ऊट पटांग चीज कर रहे हो, आप बोलो कि हाँ मैं ही सही हूँ. नो, आप सही क्या है गलत क्या है देखो, पहचानो. इसलिए मैं बोल रही हूँ, कीप ऑन लर्निंग. आप जितना ब्लॉगर्स को फॉलो करोगे, स्टाइलिस्ट को फॉलो करोगे, मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करोगे, तो ही आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है. यू हैव टू लर्न. और उसके साथ साथ प्रैक्टिस. देखिए, मैं आपको ये नहीं बोला आप इंग्लिश में ही बोलो या हिंदी में ही बोलो या आप उड़िया में ही बोलो. आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो ना, मेक श्योर यू कॉन्फिडेंट इन दैट. इंग्लिश बोल रहे हो आधा अधूरा, हाँ मैं इंग्लिश बोलूंगी तो ही मैं एकदम बड़ी मॉडल बन गई. नो, इंग्लिश बोल रहे हो सही 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 बोल रहे हो, एकदम ग्रामेटिकल एरर्स बोलो. Am I audible? Yeah. जो भी लैंग्वेज यूज करोगे सही वही लैंग्वेज यूज करो. आप इवन इंट्रोडक्शन भी जिस पोज में खड़े होके आप प्रैक्टिस करके बोलोगे, वो बोलो, मिरर के सामने बोलो. हाय, माय नेम इज कुमुदिनी, आई एम 24 years old, आई एम फ्रॉम अमेरिका. तो ये सब बोलो, अपने आप को देख के बोलो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये सबके लिए अगर आपके पास आप कोई इंस्टीट्यूट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो तो करो. लेकिन आप YouTube में बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप उनको देखिए, फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आप सीख सकते हो. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, बुक होनी चाहिए सीखने की. Yeah. Thank you, ma'am, for whatever you have said. अब तक आप जो भी बोले हैं, I was like, I really never came across a person जो मुझे इतना कुछ बता सकता है, सिखा सकता है. I have learned a lot from you, and I pray जो भी देख रहे हैं और will be watching it afterwards, they get to learn something from what you have said. And one more thing, lastly, what message do you want to give to our tribal? What message do you want to give to Baha Magazine and whole team Rasika for what they're doing for our tribal community? First of all, I really thank Duman Turu sir because ये initiation लिया उन्होंने. I'm really grateful कि he showed a ray of light to the girls who really didn't know कि कहाँ जाना चाहिए. क्योंकि ये बहुत, मैं बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सपीरियंस. अब मेरे को लोग बोलते हैं मुंबई जाओ. मुंबई इतनी बड़ी जगह है, मुंबई में कहाँ जाना है ये कोई नहीं बताता है, बस बोलते हैं मुंबई जाओ. ठीक है. सो आई एम सो हैप्पी कि ये एक प्लेटफॉर्म है. एटलीस्ट गर्ल्स कैन रीच आउट, एवरीबडी कैन रीच आउट कि हाँ देयर इज दिस प्लेस, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं. एंड आई एम सो हैप्पी वो जितने भी लोग वहाँ पे एसोसिएट हो रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक इट बिगर एवरी ईयर. मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा. आई एम रियली हैप्पी. बस मैं यही दुआ करूंगी सर एंड टू द होल टीम ऑफ रसिका, प्लीज आप बिल्कुल मत रुकिएगा. गॉड इज विथ यू, वी ऑल आर विथ यू. एंड आई एम सो हैप्पी जब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जब जो कभी पॉसिबल नहीं था वो पॉसिबल करके दिखा रहे हैं. एंड दिस इज रियली अ वेरी गुड थिंग. और मैं रियली विश करूंगी, प्रे करूंगी आप इसी तरह से आगे जाइए और ऐसे ही हजारों लड़कियों को रास्ता दिखाइए, द वंस हु रियली ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मॉडल. So thank you, ma'am, and thank you for what you have said and what you have taught me, and जो भी आपसे बाद में सीखेंगे ये वीडियो देख के, so उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. And taking out time. You need. Yes, thank you, ma'am, and thank you for taking out time for us and interacting with us. It means a lot, ma'am, and I myself loved interacting with you. I don't know when we'll be meeting, but I guess jaldi milenge if you ever come to our event. So wishing you जरूर आ जाऊंगी. Okay, ma'am. Okay, so wishing you a very great success in life. और भी आगे जाइए और भी अच्छे लेवल तक जाइए और भी अच्छा काम कीजिए. That's what I can wish you as a sister or whatever you can, आप जैसे भी मुझे माने.
So wishing you a more success in life by God's grace, and good health to your family and you, ma'am. Thank you so much. Yeah. So good night, ma'am. Good night. It was nice talking to you. Very nice, in It fact. was lovely talking to you. Okay, ma'am. Bye. Thank you, See ma'am. you. Yeah. Yes.